So beta, last time we have seen two charges, let's say Q1 and Q2. If the distance between them is R, so force will be given by K Q1 Q2 by R square. This we already know. This K is proportionality constant. Now that what we say this K to be, देखो बेटा, last time भी बताया था, this K can be 1 upon 4 pi epsilon or this K can be 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon, now this is for a medium. This is for a vacuum. So when you have a vacuum, you say epsilon naught. When you have a medium, you say epsilon naught, epsilon or simply epsilon m. Now, one thing to note is, देखो पहले तो इसको मैं नोट कर देता हूं, इसको मैं कोट कर देता हूं इसको. One thing to note is, देखो बेटा, if I put this over here, what I'm going to get is f is equal to k के बदले I'm putting 1 upon 4 pi epsilon naught m q1 q2 बटे r square. What I'm telling you is, अगर मैं epsilon naught increase करता हूं, मेरा force decrease हो जाएगा. The force between them which is acting, right? This is positive, this is positive. There will be force between them. Due to Q1, force on Q1, due to Q2, force on Q1 will be this. Force on 1 due to 2. And on this, due to this will be force on 2 due to 1 is this. Away, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है. मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी फोर्स, आई डोंट केयर, बट द पॉइंट इज, if I'm increasing epsilon m, my force is going to decrease. Now, why this is so? What is happening actually? See, beta, when there is a vacuum, there is nothing in between it. But when there is a medium, there is something between them which will resist the interaction. If there is a medium, air है, पानी है, केरोसिन है, कुछ भी है दो चार्जेस के बीच में, there is something which is stopping them. There is something which is obstructing them, resisting them. And that is the meaning of actual permittivity. अब समझ में आया? Permittivity of medium. इसका मतलब होता है कितना रोक सकते हो फोर्स को, कितना कम कर सकते हो, फिजिकल मीनिंग. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट पीपल मिस इट. व्हाई डू दे मिस इट? बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे लोग गट्टा मार लेते, सम कर ले. बट द पॉइंट इज दिस, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज बिटवीन टू चार्जेस देयर इज अ मीडियम. और अगर मीडियम होगा तो रोकेगा ना वो उनके बीच के इंटरेक्शन को. और उसके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. जो क्या होती है आज के लेक्चर में अपन सीखने वाले. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डोंट वरी अबाउट इट. इन दोनों के बीच में कुछ फील्ड होती है, अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तुमने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं. ओके बेटा, विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. सो द मीडियम के कारण फोर्स कम हो जाता है. कितना कम होता है, दैट वी हैव सीन नाउ. अब खास बात क्या है बच्चों? खास बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंसेप्ट बहुत खास बात है. इसको इंट्रोड्यूस करना खास बात है एकदम. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. ओके, one more thing, one more definition, one more thing you have to remember, very important. Relative permittivity is equal to permittivity of the medium upon permittivity in the free space. Formula list, this has to be maintained. Okay, relative permittivity is permittivity in a medium upon permittivity in a free space. This is relative permittivity. This is in a medium, this is in a free space. So this is the part that we did last time. So today's topic, electric field. Now, what is electric field? How do you feel it? So what you're going to do is, you're going to consider something. Now, this is very interesting. You're considering a big charge. Let's say plus Q. It's a positively charged object. Okay? And इसको हम बोलते हैं source charge, original charge.
ओके, एंड देर इज वन मोर चार्ज विच इज वेरी स्मॉल, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. This is positive, this is positive. So because of this source charge, test charge will move towards this side. Okay बेटा, test charge is going to move this side. कैसे समझना है इसको? आजू बाजू में कोई पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, उसको पता करना है तो कैसे करने का? एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लाके रख देने का. अगर ये मूव करेगा मतलब कोई तो बड़ा चार्ज बाजू बाजू में है. दैट इज द आइडिया. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड देन? ये तो समझ में आया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, मालूम है, पहले से पता है हम लोगों को, बड़ी बात नहीं है इसमें. अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फील लेते बेटा. मैं तो सिंपली बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, सम ऐसे से कर लो, खत्म. दैट इज नॉट द आइडिया. आइडिया इज टू अंडरस्टैंड एंड फील इट. व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ यू फील अबाउट इट? अब तक तुम लोग कितनी सारी चीजें पढ़ी होगी, पावर वावर सबका फॉर्मूला रट्टा मार लिया होगा. व्हाट इज पावर? नोबडी नोस. सो हैव टू फील द कंसेप्ट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? सो बेसिकली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड as a space. Electric field is a space around a charge. Electric field we define as a space around a charge in which its influence can be felt by other charged particle. किसी को नहीं समझा? Let me explain. Electric field we define as a space around a charge in which its influence can be felt by charged particle. कहने का मतलब क्या है? एक टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया छोटा सा, इस बड़े चार्ज के कारण कुछ तो हो रहा था. अब कुछ तो क्या हो रहा था मैं बताऊंगा. उस कारण फोर्स एक्ट किया और वो अवयव जा रहा था, मतलब इसके कारण ये दूर भागा. तो जिस कारण से वो दूर भागा, that was something, that electrostatic force was there between them, because ये पॉजिटिव. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब इसे याद रखना, आगे बहुत सी बार यूज करूंगा मैं. This is always positive, always, because this is a charge by which we are practicing things, we are understanding things. We will always keep this positive by convention, by laws of physics, or by applying. If you want to learn physics, we will consider now this to be positive. अब समझो, ये पॉजिटिव था, इसके कारण बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा था, तो इस कारण से ये दूर भागा. तो बेटा ये जो इन्फ्लुएंस है इसका इसके ऊपर, ओके, जिस कारण ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. वो स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अच्छा समझो ये होता ही नहीं, समझो ये नहीं होता, खाली टेस्ट चार्ज होता, इसको कुछ होता क्या, इसको कुछ फर्क पड़ता क्या? वैसे का वैसे ही रहता. क्योंकि ये है, इस कारण से दूर जा रहा है, तो ये जो स्पेस है पूरा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. समझो ये होता ही नहीं, समझो है ही नहीं, इमेजिन करो, ये नहीं है, तो ये मूव करता क्या? कोई स्पेस बनता क्या? नहीं बनता. अरे कोई स्पेस बनता क्या? नहीं बनता. क्योंकि है ये है, इसके जैसे इसको फर्क पड़ रहा है और ये घूम रहा है, मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो ये जो पूरा स्पेस है बोर्ड का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. बेटा ये इमेजिनरी कंसेप्ट जो हम बनाते हैं. एक और चीज, यहां पर फोर्स लग रहा है, अभी तो तुम, अब तक तो तुम समझ में आ गए कि इस पर कोई फोर्स, तुम ऐसा धक्का नहीं दे रहे हो, इस कारण की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है. अब तक तो तुमको भी समझ में आ गया होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? दिस चार्ज इज क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, जिस कारण ये मूव कर रहा है बेटा. अगर ये नहीं होता तो ये मूव करता ही नहीं. ये है तो वो मूव कर रहा है ना, तो यहां पर कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण वो मूव कर रहा है, एंड उसको हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फील्ड एक्ट कैसे करता है, चलो ऐसे समझेंगे इसको. इसको तुम, ये तो तुम समझ में आ गया होगा तुमको. लेट्स से ये बड़ा चार्ज है,
यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो बेटा इसके कारण इस पे कुछ फोर्स लगेगा, ऐसे रख देता हूं मैं इसको, छोटा सा है, इसके कारण इस पे कुछ फोर्स लगेगा, ये सोर्स चार्ज है मेरा टेस्ट चार्ज है, तो इसके कारण ये इधर मूव करेगा, फोर्स ऐसा लगेगा, ऐसे लगेगा ना फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है बेटा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझो ये क्यू नॉट इधर है तो ऐसे लगेगा फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर प्लस क्यू नॉट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। समझे माइनस क्यू होता, ये प्लस है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, तुम्हारा फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, तुम्हारा फोर्स ऐसे लगेगा, तुम्हारा फोर्स अगर प्लस क्यू नॉट इधर है ऐसे लगेगा, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसी होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगी। सो दिस इज द वे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स। ओके, या तो रेडियली इनवर्ड्स या रेडियली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स कब लगेगी, जब ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव दूर जाएगा, अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो फोर्स अगर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कीप दिस इन माइंड। ओके बच्चों, जिधर फोर्स लगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये समझ में आ गया अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील आ गया क्या है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है और वो किस पे डिपेंड करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरी सिंपल इट इज, वेरी वेरी इजी। See, at the end of the day, it's all about formulas and applying the formulas, but understanding is equally important. So let us feel it again. अपने को समझा क्या बाबा, अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बड़ा वाला और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, उस कारण से ये इधर जा रहा है, तो जिधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, फोर्स उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होगी। तो इसके कारण इस पे कुछ तो लग रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहा है वो, और वो कुछ तो हम फोर्स बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स लग रही क्योंकि इस स्पेस में देयर इज सम फील्ड जिसके कारण ये मूव कर रहा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। बट द पॉइंट इज, अगर इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो क्या इसके कारण इस पे नहीं लगेगी, इसकी वजह से इस पे लग सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई नॉट, बट इट इज वी आर टेकिंग दिस टू बी वेरी वेरी स्मॉल बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। सो वी से दैट इट डज नॉट एक्ट, इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स ओन, वी से दैट। अच्छा एनीवेज, लेट अगेन बैक टू द टॉपिक दैट वी आर स्टडीइंग, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बेटा। सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन इट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है उसका, जैसे मैं खड़ा हो जाऊं किधर अखाड़े में, कितने लोगों को पटक सकूं, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स, is defined as electric force acting on a positive test charge, which is obviously q naught plus q naught, placed
placed at a point divided by the test charge. Now this is very interesting. Let's feel it again. Physics is all about feel. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना is defined as electric force acting on a positive test charge. So let's say there is a positive test charge. Okay, समझो this is point P. Here there is positive test charge. तो समझो कोई बड़ा चार्ज होगा, उसके कारण इस पे कुछ फोर्स लगेगा, और जिधर फोर्स लगेगा, लेट्स से इधर फोर्स लग रहा है. ओके, ये तो सिनेरियो ही है. अगर कोई बड़ा चार्ज होगा, उसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा इधर आजू बाजू में, इस कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा. अगर वो खुद चार्ज पॉजिटिव है तो इधर अवे जाएगा वो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं हम? हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field at that point is electric field strength. Symbol is E. Electric field strength at a point is defined as electric force. कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स? एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. दिस इज टेस्ट चार्ज ओनली. तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? डिवाइडेड by the test charge, divided by this. When you do this, you get an electric field at that point. उस point पे electric field कितना होगा? You get that. तो E, if you write in a vector form, ये भी वेक्टर है basically. You get this. अब यूनिट क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लॉजिकली सोचो, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लू, फोर्स न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है. दिस इज न्यूटन कूलम और न्यूटन कूलम -1. इसके डायमेंशन क्या होंगे? फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t -2. और चार्ज है, चार्ज का क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो क्यू क्या होता है? आई टी. चार्ज का आई टी होता है ना, आई फॉर करंट एंड टी फॉर टाइम. तो काम करो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो. m1 l1 t माइनस, इधर +1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और i +1 ऊपर जाएगा तो i -1 हो जाएगा. तो दिस इज योर डायमेंशन. सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है. 110% आता है ये बोर्ड्स लेवल पे, तो 110% आता है. कभी एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलो लेट अस सी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी सिंपल ऑल्सो. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन चार्ज भी निकाला अपन ने. चार्ज कौन सा था? टेस्ट चार्ज. फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट वी आर क्लियर नाउ. नाउ वेरी इजी इट इज. चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. तो देयर इज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझो पॉइंट पी है, इसमें कुछ फोर्स लग रहा है लेट्स से. तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड.
बच्चों इस पे फोर्स लग रहा है या तो इस पे फील्ड है बहुत सारी, वो क्यों है? बिकॉज यहां पर कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज होगा, ऑब्वियसली चार्ज होगा, डिस्टेंस भी होगा कुछ। तो ये जो फोर्स होगा उसको निकालो पहले तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2। Q1 क्या है? प्लस Q। Q2 क्या है? Q नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है? अरे क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये क्योंकि दो चार्जेस है। अरे एक चार्ज ऐसा ही बैठा है तो क्या लगेगा चार्ज? फोर्स लग रहा है क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, देयर आर टू चार्जेस, देयर आर डिस्टेंस बिटवीन देम, so that is the electrostatic force. Now tell me बच्चों, what will be electric field at that point P? फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज विच इज Q नॉट। टेस्ट चार्ज Q नॉट है ना इस केस में भी, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज छोटा वाला। अब Fe क्या मिला अपने को? K Q बाय Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय Q नॉट भी है, Q नॉट छू हो गया, तो क्या बच गया? K Q बटे आर स्क्वायर, ये बच गया। अब K क्या होगा? समझो ये वैक्यूम नहीं, एक मीडियम है, ये मीडियम है इन दोनों के बीच में, तो परमिटिविटी आएगा क्योंकि मीडियम है तो कुछ तो रोकेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड को वो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मीडियम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, या वैक्यूम में तो क्या हो जाएगा के? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Therefore electric field at that point will be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी फोर्स लग रहा है, ये कंसेप्ट हमने बनाया है टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर वे। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ न वैक्यूम एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस फॉर्मूला आल्सो लिस्ट में मेंटेन करना, एंड ये वाला फॉर्मूला भी लिस्ट में मेंटेन करना। ओके, द आइडिया इज वेरी सिंपल नाउ। कोई पूछ ले कि एक टेस्ट चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा उस पॉइंट पे, तो कैसे करने का? एग्जाम में पूछ लिया, निकालो। सिंपल वे क्या करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होता है वो सोचो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इटसेल्फ? व्हाट इट इज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया कहां से? ऐसे तो फोर्स पैदा नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, एक बड़े चार्ज को रखना पड़ेगा, बड़े चार्ज को रखेंगे तो फोर्स लगेगा। फोर्स लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? मैंने बताया था, देखो मालूम कैसे पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिकॉज अगर तुम इसको यहां पर रखते हो तो ये मूव करेगा, ये मूव कर रहा है क्योंकि ये है, समझो एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये है, इसके जो डिस्टेंस है, तो वी कैन कैलकुलेट फोर्स बाय कूलम्स लॉ। बाय कूलम्स लॉ के Q1 Q2। अब तुम बोलोगे Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा? अरे बाबा मैंने एक चार्ज को प्लस क्यू लिया है, एक को प्लस क्यू नॉट लिया है, तो मैंने वो लिख दिया, अगर क्यू नॉट इधर नीचे आएगा। ओके, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है अपने को, फोर्स नहीं पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा एट अ पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो के क्यू बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसल, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब के को मैंने 1/4 पे एप्सिलॉन लिखा मीडियम के लिए, फॉर अ मीडियम, फॉर अ वैक्यूम के विल बी दिस। तो मैंने जस्ट वैल्यू पुट की और मुझे फोर्स मिल गया। So this is the basic framework. Now one graph I want to show you all. Electric field and radius का. So if we have
let's say a graph, electric field, this is r square. जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अंडरस्टैंडेबल. जितना ज्यादा दूर होगा चार्ज, फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. तो ग्राफ इज लाइक दिस. ओके, ये डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to Q1 and Q2. Q1 is 1 microcoulomb, Q2 is minus 1 microcoulomb. Distance between them is said to be 6 centimeter. And ये ऐसा ड्रॉ करके दिया हुआ है अपने को, ये पॉइंट P है. ठीक है, तो पहली बात तो ये एट पॉइंट P, मतलब पॉइंट P पे वी हैव टू कंसीडर टेस्ट चार्ज प्लस Q0. ओके, अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये आधा 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, अंडरस्टैंडेबल. ये Q1 है, ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव. इसके कारण इधर ऐसे फील्ड आएगी, ऐसे लगेगी, है ना, बराबर. अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण इधर जो फील्ड लगेगी वो अलग तरीके से लगेगी. ऐसे लगेगी. तो एक फील्ड ऐसी लग रही है, एक ऐसे लग रही है. अब तुमको नेट फील्ड चाहिए. लॉजिक लगाओ यार, सिंपल है. तुमको क्या क्या देख रखा है, और ये 4 देख रखा है तुमको, ये 3, ये 4, ये 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो 5 मिल जाएगा. दैट इज क्लियर, नॉट एन इश्यू. तुमको नेट फील्ड चाहिए, समझने की कोशिश करना. तुम्हारी एक फील्ड ऐसी है, एक ऐसी है, तो नेट फील्ड को इधर ही मिलेगी तुमको, इधर ही कुछ नेट फील्ड मिलेगी तुमको. दैट इज अंडरस्टैंडेबल. प्रैक्टिस कितना किया अपने प्रैक्टिस, तो इधर ही कुछ फील्ड मिलेगी तुमको. पॉइंट इज कैसे मिलेगी, वी नीड टू गेट सम एंगल, राइट. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. समझो, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, इसको भी मैं थीटा ले लेता हूं. तो ठीक है, थीटा होगा. इसको ऐसे समझो, देखो सिंपल तरीके से एकदम. इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर लगेगी, इधर ही लगेगी ना. ये जेड है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो ये थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है, तो ये भी थीटा होगा. वैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ओके, बाय यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री यू कैन गेट दैट. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द नेट फील्ड. तो समझो ऐसे, लेट्स से थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया. तो कंपोनेंट निकालो, इधर साइन थीटा हो जाएगा, इधर ये कॉस थीटा हो जाएगा, इधर ये साइन थीटा हो जाएगा. ड्यू टू दिस इधर कॉस थीटा हो जाएगा और इधर साइन थीटा हो जाएगा. साइन थीटा जिसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज ई, ई कैसे मिलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टेस्ट चार्ज बटे आर स्क्वायर जो डिस्टेंस होता है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वाला. अब ड्यू टू सेकंड क्या हो जाएगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटे जो डिस्टेंस है. तो दोनों सेम ही है ना एक्चुअली, तो बस पुट कर लो उसको, जस्ट पुट इट देयर. ले ले इसको, इसको के ले लेते हैं यार, चलो झंझट ही नहीं. 2k, और दोनों सेम टू सेम है ना, Q/r² cos थीटा. अब थीटा कितना होगा, ये 90 है. देखो 3 4 5, इट्स अ वेरी फेमस ट्राइंगल, 37 डिग्री 53 डिग्री 90 डिग्री वाला ट्राइंगल. तो थीटा क्या होगा, इट इज अपोजिट टू 4,
तो दिस विल बी 53 डिग्री, पता है ना? 5, लेट्स से दिस इज 4, दिस इज 3, तो इसके अपोजिट वाला 50 डिग्री होता है, 3 वाला अपोजिट वाला होता है 37 डिग्री, एंड 90 डिग्री के सामने वाला ये 5, ठीक है? तो cos 53 डिग्री, अब cos 53 कितना होगा? adjacent upon hypotenuse, adjacent is 3, hypotenuse is 5, okay, so this will be 3 by 5, so 2k cube by r square into 3 by 5, okay? Now what do we have? 2 into what will be k? 9 into 10 to the power 9 into q1 है माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करने का, माइक्रो तो कूलम कन्वर्ट कर 10 to the power -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? वी हैव टेकन टू बी 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 into 10 to the power -2 the whole square into 3 by 5. Now you have to just solve it, ठीक है? So what you are having, let us see, 5 into 10 to the power, this is will be 25 into 10 to the power -24 -4, sorry, ये 10 to the power 3 हो जाएगा, तो चला जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 10 to the power 7 हो जाएगा, this will go away, this will be now 18 into 3, 54 upon 25 into 5 into 10 to the power 7, okay, 25 into 5 125, 30 on 125 10 to the power 7, 54 divided by 124, 124 into 4, 16, 496, 44, 0.4 something you will get, okay? Again if I take 0 over here, 54 कितना जा 440, so we have to think about, so you will get 0.4 something, 0.4 into 10 to the power 7. Unit is important, you are calculating electric field, तो न्यूटन कूलम, क्योंकि अपन ने ऐसा यूनिट में किया है पूरा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, this electric field which is already there, and there is some charge which is placed, and जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, सिंपल. तो नॉट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? F upon Q नॉट, तो ऑटोमेटिकली फोर्स Q नॉट इंटू E, दिस इज योर फोर्स. अगर नेगेटिव होता तो फोर्स ऐसे होता, बेसिक.